तो टेक्निकली देखिए हमने सारे सम कर लिए और अब आते हैं हम अपनी लास्ट कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स की तरफ, राइट। ये क्या है भाई, इस कैटेगरी को आप क्या बोलेंगे? इंट्यूटिव क्वेश्चन, अर्थात कवि क्या कहना चाहता है, दीज आर द क्वेश्चंस विच आर नॉट एग्जैक्टली अ रन ऑफ अ मिल क्वेश्चन, के पैटर्न नहीं है इनका। तो हम देखेंगे कि वॉट एवर क्वेश्चन आर हाउस्ड अंडर दिस कैटेगरी वुड रिक्वायर मोर देन अ लिटिल बिट ऑफ एप्लीकेशन of the concept and some bit of common sense when you're doing these kind of questions. अब इसके अंदर कुछ questions है जो मेरे डाले हुए हैं, कुछ exam type questions है, very few exam type questions, few questions that I have plugged in. So this is a mixed bag category and over here I'll tell you which are, अभी तक तो क्या है कि majority were kind of a 4-star 5-star problem. Over here these questions I'll give a star part by part, some are not very important, I'll tell them beforehand, but as of now coming to 2.26 question number, I'll give it a good 4-star. Reason being it's already featured in May 2016 attempt for 8 marks, so we shouldn't give it a miss. लेकिन ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये मेरी शायद फेवरेट कैटेगरी में बोल सकता हूँ। इंट्यूटिव क्वेश्चन एवरी चैप्टर में जैसे रहेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इंट्रोडक्शन में। नाउ लेट्स बिगिन रीडिंग द सम। Sam Limited has just paid a dividend of ₹2, we had D0 per share and it is expected to grow at the rate of 6% per annum. After paying dividend, the board declared to take up a project by retaining the next 3 annual dividends. राइट, ये थोड़ा कैपिटल बजटिंग टाइप साउंड कर रहा है। वो हमने कैटेगरी की थी सम की जहां कैश फ्लो के ऊपर था, wherein we do not pay dividend and redirect such cash flows for the purpose of investment. It is expected that this project is of the same risk as the existing projects. In short, the KE of the new project and the existing project is same, यानी existing business same. KE कितना है बताया नहीं इन लोगों ने। The results of this project will start coming from 4th year. तो 3 साल के एनुअल डिविडेंड हम लोग को ब्लॉक करने पड़ेंगे यहां जैसे लिखा गया है, by retaining next 3 annual dividends, करेक्ट। एंड 4th ईयर से इसका कैश फ्लो आना शुरू हो जाएगा। will start coming, the results of this project will start coming from 4th year onward from now. The dividends will then be 2.5 per share, यानी कब 4th ईयर पे, and will grow at 7% per annum, better than the current 6% per annum growth, right? An investor has 1,000 shares in Sam Limited and he wants a receipt of ₹2,000. यहां से सम एक यू टर्न लेना शुरू करता है, राइट, एंड इट गोज इनटू डिफरेंट टेरिटरी। यू टर्न भी नहीं कैसे आएंगे, लेफ्ट एंड राइट टर्न, एंड वी डोंट नो द टेरिटरी, दिस इज अ फ्रेश टेरिटरी दैट वी वुड बी गोइंग इनटू। इसको चाहिए भाई रिसीट कितने की, 2,000 ही वांट्स एवरी ईयर फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। और यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, दैट द डिविडेंड, द बोर्ड इज प्लानिंग टू ब्लॉक द डिविडेंड्स फॉर नेक्स्ट 3 years and he wants 2,000 per annum. तो कैसे मैनेज करेंगे? शो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड। ऑल्सो शो एज टू हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन हिज टारगेट रिसीट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट for first 3 years and improved income thereafter, given that the cost of capital of the firm is 8%. तो यहां हम लोग को cost of capital की जानकारी मिल गई, so nothing much to worry about. So last line में they revealed the cost of capital for our help. Thank you the institute. And now we'll go on to the sum, right? बहुत ही प्यारा sum and it's a very worthy sum to do before exam. Now let's begin with the answer of this. राइट, तो हम लोग पहले करंट कंडीशन चेक कर लेते हैं। करंट कंडीशन क्या है, D0, कंप्यूटेशन ऑफ प्राइस अंडर प्रिवेलिंग कंडीशंस। परफेक्ट। D0 क्या है, ₹2 per share. It is our D0. Expected growth as of now. Expected growth is how much guys? 6%. Now ये अभी का सिनेरियो है एंड के कितना दिया हुआ है 8%, तो वो कोई कष्ट नहीं है। So if we just apply this and try to figure out what would be the price as of now, right?
तो कैन आई राइट P0 इक्वल्स टू D1. D1 इज नथिंग बट D0 इंटू 1 plus G divided by KE minus G. That's 2 into 1.06 divided by 0.02. That's rupees 106. तो ये हमारा करंट प्रिवेलिंग प्राइस है. ये होना चाहिए इंट्रिंसिक वैल्यू. सो वी आर अज्यूमिंग दिस टू बी द मार्केट प्राइस एज ऑफ नाउ. बट नाउ द प्रॉब्लम बिगिंस with the board of directors suggestion. यहां देखिए लिखा हुआ ना, डिसीजन ऑफ द बोर्ड. सो एज पर suggestion of board of directors, the dividend for next 3 years would be used for investment in a project. Right? The project will start yielding benefit from 4th year as stated. ठीक है. D4 given as rupees 250. Growth thereafter, growth would change to, यानी वहां से ग्रोथ कितना हो जाएगा 4th ईयर से भाई 7% चेंज टू 7%. सो इफ वी टेक द चेंज सिनेरियो इनटू अकाउंट, 2-3 बातें खास ध्यान रखने लायक है. 2.5 is D4. So when we apply D4, what do we get? We get P3 values. Am I right? So if we apply D4, we get P3 values. तो कैसे लिख पाएंगे हम लोग इसको? P3 equals to D4 divided by KE minus G. Right. One more important thing. This D4 value जो है भाई 2.5 is already adjusted for 7% growth. ये हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, जैसे मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में सिखाया था द्वापर युग की शुरुआत में. I told you that अगर आपको दिया है ईयर एंड वैल्यू एंड ग्रोथ दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट द ग्रोथ इज इंकॉर्पोरेटेड इन सच ईयर एंड वैल्यूज. राइट. तो करंट ईयर एंड पे जो वैल्यू आ रही है उसमें ऑटोमेटिकली ग्रोथ इज adjusted, so we needn't further adjust it. So applying this, how do we get P0 value? बड़ा ही आसान है. हम लोग क्या करेंगे, यहां पहले D4 वैल्यू डाल देंगे. D4 वैल्यू 2.50 डिवाइडेड बाई KE कितना है 0.08, वो चेंज नहीं हो रहा है, माइनस G 0.07, the new G, and 2.5 is already along with G. For God's sake, do not adjust G to it. Right? Into, अब ये क्या आ गया हमको, D4 would give P3 value. So how do I rock it back to P0? I'll put it as 1.08, 1 divided by 1.08 raised to power 3. So we get the present value of the share if the board of directors suggestion is taken into account and implemented. तो कितना आएगा भाई, सीधा सीधा 2.5 divided by 0.01 will give me 250, and I get the P0 value as कितना आएगा मालिक, P0 वैल्यू ₹198.46. भाई जबरदस्त इंक्रीज. तो यहां हम लोग एक नोट लिख देंगे, इफ द बोर्ड ऑफ
director's suggestion is considered, then the market price would increase from rupees 106 to rupees 198.46. Jabardast increase, right? Because this project is leading to growth changing, one big deal. Dividend is increasing, so बहुत सारे changes ला रहा है ये project. Even though the first 3 years dividend is not paid, still there is a huge jump in the market price because it's technically changing the very प्रीमाइस. पूरा ग्रोथ ही आपका चेंज हो जा रहा है. जो 6% आप 7 हो जा रहा है, डिविडेंड में इंप्रूवमेंट है. तो अगर आप देखें देयर इज अ मैसिव जंप इन द प्राइस दैट वी आर एबल टू विटनेस. बट द प्रॉब्लम नाउ अराइजेस इज, देखो, शो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड. सत्यवचन ये हमने कर लिया, राइट? तो ये हाईलाइटर हमारा ठीक. अब क्या कष्ट है? Also show as to how the investor can maintain his target receipt from investment for the first 3 years and improved earnings thereafter. तो ये बहुत मस्त है. यहां जाते हैं. For the year just ended, the investor has received ₹2 per share, क्योंकि ये D0 था. Therefore, on a holding of 1000 shares, he has earned ₹2000. सत्यवचन 2 into 1000. Thus, no further action is required at the current point. Furthermore, as no dividend would be paid for next 3 years, the investor needs to sell certain quantity of shares to ensure that he is able to achieve a target of ₹2000 per annum. अर्थात बालको क्या लिखा है कवि ने? कवि ने लिखा है कि एज ऑफ नाउ, भाई देखो सम अगर ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है सम में, डिविडेंड जस्ट पेड, राइट? सो आफ्टर पेइंग द डिविडेंड, एज ऑफ नाउ मानो 31 मार्च पे हम लोग खड़े हैं, डिविडेंड ऑलरेडी रिसीव हो गया है. सो द इन्वेस्टर नीड नॉट बॉदर अबाउट टुडे. एज ऑफ नाउ ही नीड नॉट टेक एनी बिट ऑफ एक्शन, बट ऑब्वियसली एज द नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड्स वुड गेट ब्लॉक्ड, he needs to sell the shares. तो वही कवि ने लिखा है, thus no further action is required at the current point. Furthermore, as no dividend would be paid for the next 3 years, the investor needs to sell certain quantity of shares to ensure that he is able to achieve a target of ₹2000 per annum. लेकिन at the end of 12 month, 12 month, 24 month and 36 month dividend नहीं दिया जाएगा. At that point in time, this person, in order to meet his ₹2000 of target, he needs to sell certain shares. Right?
price of shares at the end of year 1, year 2 and year 3 from now. इसका कंप्यूटेशन आवश्यक है बिकॉज ही हैज टू सेल. सो 3 प्राइस का अपन को कंप्यूटेशन करना है. अगर आप नोटिस करो, इफ वी अप्लाई दिस, थर्ड ईयर प्राइस तो ऑलरेडी मिल जा रहा है, करेक्ट. D4 divided by KE minus G gives me P3. So we'll already get that. लेकिन हम लोग को शॉर्टकट नहीं लगाने, सब डिटेल में एक्सप्लेन करना है. ऑब्वियस सी बात है कि यहां दिस इज ऑन अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सजेशन, राइट. नाउ सो हम लोग ईयर बाय ईयर प्राइस फाइंड करेंगे, तो लिख देते हैं प्राइस एट एंड ऑफ ईयर 1. तो क्या आएगा भाई, देखो यहां हमने D4 वैल्यूज यूज की थी. यहां D4 गिव्स अस P3 वैल्यूज, हमको क्या चाहिए, P1 वैल्यू चाहिए, P0 वैल्यू नहीं चाहिए. सो कैन आई से P1 इक्वल्स टू D4 डिवाइडेड बाई KE माइनस G. सो ऑब्वियसली अप्रूवल हो गया तो G हो जाएगा 7%. तो यहां T4 ने हमको क्या वैल्यू दे दी, 2.50 is our D4 values divided by KE minus G is giving us P3 values. Now we need to bring P3 to P2, P2 to P1. तो क्या आएगा यहाँ 1.08 raised to power 2. देख लेते हैं अपना P1 प्राइस क्या है, 2.5 डिवाइड बाय 0.01, ये 250 तो आ गया. 214.33 P1 वैल्यूज. दैट इज द प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1. अभी के लिए क्या है, D0 प्राइस, P0 प्राइस देख लो भाई, 198.46 है. एट द एंड ऑफ ईयर 1 क्या होगा भाई, 214.33. ये प्राइस होने का चांस है. अब आगे बढ़ते हुए प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 2, भाई ये कितना आएगा, P2. क्या D4 वैल्यूज यूज कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं. D4 क्या देगा हमको, P3. P3 will rock it back by 1 year to P2. So we get 231.48. The prices are very important to know. The reason being, at the end of every year, the investor, as we were studying now, have to sell certain shares. So we have to figure out the price at which he can sell it. So this is rupees 231.48, right? अब क्या आएगा भाई, प्राइस एट एंड ऑफ भाई क्या, ईयर 3. ये तो सबसे आसान है, P3 इक्वल्स टू D4 डिवाइडेड बाई KE माइनस G. ये कितना हो जाएगा, रुपीज 250. Now we figure out how many shares he needs to sell. That is what the question asks. So of shares sold by the investor. सत्यवचन, तो ये कंप्यूटेशन हम लोग कर लेंगे. Now want you to start edge to edge because there will be little bit more columns. Year 1 क्या आएगा, number of shares sold. Revenue generated. So जो कैसा 2000 के ही तो सेल करने हैं,
2 मिनट रुक जाओ, अभी मालूम पड़ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड आफ्टर सच सेल, डन। So at the end of first year, that is 12 months from now, he would be selling how many shares to gain 2000 rupees? कितना होगा भाई? प्राइस क्या है? 214.33। सो 214.33 कितने शेयर्स भाई होंगे? 9.33 शेयर्स आ रहा है साहब भाई, 9.33। हम लोग यहां लिखेंगे और से 10 शेयर्स। हाउ विल यू सेल अ फ्रैक्शन? सो 10 शेयर्स आ जाएगा यहां। ऑब्वियसली द रेवेन्यू जनरेटेड वुड बी अ लिटिल डिफरेंट। सो 214.33 into 10 is nothing but rupees 2143.30. So he made more than 2000 by selling the shares. His target was at least 2000. So you cannot sell fraction of shares. So we had to ensure that we are going about 2000 shooting over here. This is generally not the rounding off that we do, but we are doing this rounding off because we have to fulfill his target of 2000 rupees. 9.33 की जगह अगर 9 शेयर्स आ जाता तो 214.33 into 9 shares डाल देते, कितना था? 1928.97. So his target wouldn't have been met. That's why we did upper rounding off. Generally we don't do upper rounding off when the number is below 0.5. ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड कितने हैं भाई? 1000 माइनस 10 कितना आ गया भाई? 990 शेयर्स। अब सोच रहे हो ये शेयर्स हेल्ड क्यों कर रहे हैं सर, ये रखने की क्या जरूरत है? एट द एंड ऑफ 3 years जब खत्म हो जाएगा उसके बाद तो देखना तो है कितना शेयर्स है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू डिविडेंड आर वी एबल टू मीट 2000 और डू बेटर एज द सम इज स्टेटिंग। वही मैं बताने की ट्राई कर रहा था, थोड़ा यहां कॉमन सेंस लगाने की जरूरत पड़ रही है ऐसे सम्स में। प्राइस at the end of year 2, 231.48 कितने शेयर्स हो गए भाई? 2000 डिवाइडेड बाय 231.48 क्या लिखा? 8.64 शेयर्स, 8.64 और से क्या करेंगे? 9 शेयर्स in order to meet this guy's target. So क्या भाई कितना प्राइस है? 231.48 231.48 इंटू 9 कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? 2083.32। टारगेट मीट, ये भी टारगेट मीट हो गया इनका। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड कितने आ गए अब? 990 माइनस 9 कितना हुआ? 981 शेयर्स। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। सो ही वांट्स टू जनरेट 2000। थर्ड ईयर का प्राइस जहां तक मुझे याद है 250 है। सॉर्टेड 8 शेयर्स ही नीड्स टू सेल, सो नो राउंडिंग ऑफ रिक्वायर्ड। यहां प्राइस क्या आएगा? 250 इंटू 8 शेयर्स, टारगेट ऑफ रुपीज 2000 दैट ही वांटेड पर एनम इज मेट। करेक्ट। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 981 माइनस 8 यानी कितना बचा? 973 शेयर्स बच गए। करेक्ट। तो ये था लंबा चौड़ा कैलकुलेशन। द इन्वेस्टर इज लेफ्ट विथ 973 शेयर्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। Dividend of rupees 2.50 per share would be paid for 4th year and the same would grow कितने रेट से भाई? at 7% per annum. Therefore his income, that is dividend, this investor's income, therefore his income for
year 4 from dividend would be क्या भाई 973 शेयर इंटू 2.50, बाकी तो आगे बढ़ते ही जाएगा 7% के रेट के हिसाब से। सो 973 इंटू 2.5 कितना आया बालक, रुपीज 2432.5 as the amounts received, as the amount that would be received is greater than his target, he would not require to sell shares, would not be required to sell shares any further, right? So any which ways he is making that 432.5 extra. कितना एक्स्ट्रा रहा है भाई, 432.5 इंप्रूव्ड इनकम, यही कवि ने बोला था स्टार्टिंग में मालिक, राइट? यहां देखो अगर सम को, फ्लो में बहुत सारा लिख दिया मैंने तो। नाउ also show as to how the investor would maintain his target receipt by selling shares 10, 9 and then 8 in first, second and third year respectively from the investment for the first 3 years and improved income thereafter. उसके बाद कोई सेलिंग की आवश्यकता नहीं है, he is not required to sell any shares because he is already beyond his target of 2000 rupees receipt. उस टारगेट से ऑलरेडी उनका ज्यादा आ रहा है पैसे, 2432.50, राइट, रफली, गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%। तो ये हो गया हमारा सम सॉल्व, राइट? इसके ऊपर एक थोड़ा सा रन थ्रू करा दे रहा हूं। सबसे पहली बात करंट सिनेरियो, यहां तक कोई टेंशन नहीं है, कोई कष्ट नहीं, इजी है। नाउ द प्रॉब्लम इज बीओडी का सजेशन अगर लिया तो प्राइस क्या आ जाएगा, न्यू सिनेरियो। इंपॉर्टेंट बात 2.5 शुड नॉट बी एडजस्टेड फॉर ग्रोथ, राइट? या फिर इसको लिखूं इज ऑलरेडी एडजस्टेड। यहां मुझे डर लगता है बच्चे ज्यादा स्मार्ट होने की ट्राई करते हैं, हमने स्टार्टिंग में किया ही था। अगर ग्रोथ रेट दिया हुआ है, डिविडेंड इज ऑलरेडी गिवन फॉर द फ्यूचर, देन वी आर नॉट सपोज टू एडजस्ट इट एनी फर्दर। अगर प्रेजेंट है तो एडजस्ट करना है, देन वी ब्रिंग इट टू फ्यूचर, डन। तो ये हमको प्राइस मिल गया चेंज सर्कमस्टेंसेस का, देयर इज अ मैसिव इंक्रीज, राइट, फ्रॉम 106 टू 198.46। जितना नोट, जितना एक्सप्लेनेशन ज्यादा लिखोगे सम में, द मोर यू राइट, द मोर यू एक्सप्लेन, द मोर क्लियर यू आर, more marks you fetch at the end of the day. For the year just ended, the investor has received कितना भाई 2, तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, no action is required. But for the next 3 years, in order to catch up with the 2000 receipt target, he needs to sell how many shares? तो उसके पहले हमको प्राइस जान लेना पड़ेगा। So price for year 1, year 2, year 3 respectively known, then we figure out the shares, that's 10, 9 and 8 that needs to be sold. Right? After that, he has an improved income of 432.50 beyond his target. So he needn't sell any shares further after year 3. So ये हो गया हमारा सम एकदम कष्टलेस।